A meat crisis is looming in Uttar Pradesh. Meat sellers across the state have gone on an indefinite strike against the crackdown on illegal and mechanized slaughterhouses. Fish vendors have also now resolved to join the stir. And while the meat fight simmers, its impact is also being felt in the national capital, where parliamentarians also raise the issue. But the question is, who is behind this crisis, and is illegality to be overlooked only for other reasons? Shops shut, anti-government protest, meat traders out on the streets. A meat crisis is looming in Yogi's Pradesh. From Lucknow to Varanasi, Gorakhpur to Allahabad, meat sellers went on an indefinite strike across the state against the crackdown on illegal and mechanized slaughterhouses. मुसलमानी आबादी तो बढ़ रही है, बच्चे हम पे 5, 6, 7 तक कहाँ से लाए खाने को? सरकार ने तो एकदम आदेश कर दिए। भाई कुछ दिन का हमको टाइम देते तो कम से कम उसका इंतजाम तो हम कर लेते। Chicken and fish vendors also joined the stir, leading to non-vegetarian delicacies going off the menu in several parts of the state. Some traders even claimed that local police officials threatened to seal their shops. दुकानों को पुलिस वाले बंद करा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और उसके बाद धमकी दे रहे हैं कि सील्ड कर दिया जाएगा। More than 140 illegal slaughterhouses were closed, but even the people who were trying to do small business from their homes, the administration has swung into action and have dissuaded these people not to cut any animal even at their home. Assurances poured in from the newly elected BJP government, which also warned officials against overzealousness. ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचरखानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। अति उत्साहित जो अधिकारी हैं वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जिनके पास लाइसेंस है। उदाहरण के लिए किसी ने लाइसेंस में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है और नहीं लगाया तो उसको बंद करने का आप प्रयास ना करें। The crackdown on illegal abattoirs has left the traders angry and the meat eaters miffed. But the critical question remains, should they stop the action against illegal slaughterhouses? And who will this stand to benefit? With Shiv Pujan Jha in Lucknow, Bureau Report, India Today. Joining us now on 8 p.m. is Sudhanshu Trivedi. He's the national spokesperson for the BJP. Abdul Hamid Qureshi, he's the president of the Lucknow Bakra Gosht Vyapar Mandal. And Aslam Zaidi, he's the head of the Poultry Farmers Association. But I want to ask the first question to Mr. Qureshi. Qureshi साहब, आप लोगों ने indefinite strike शुरू की है, पर अगर illegal slaughter houses के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये strike का मकसद क्या है? स्ट्राइक का मकसद ये है कि हमारे बिना नोटिस दिए, बिना किसी इत्तला बिना इत्तला के ये अचानक आप पर कार्रवाई की गई है, आपका कहना है। पर क्या ये सच नहीं है कि मई 2015 में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है कुरैशी साहब, उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं उत्तर प्रदेश में और जो जगह हैं उनका नाम भी दिया था एनजीटी ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको परमिशन लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और उसके बिना वो नहीं चल सकते। तो कायदे से तो कम से कम 2 साल का वक्त था। आवाज नहीं आ रही। कुरैशी साहब, अब सुन सकते हैं आप मेरे को? जी सुन रहा हूँ। सवाल आपसे था कि मई 2015 में जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला था कि परमिशन आपको लेनी पड़ेगी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तब से लेके अब तक वो परमिशन क्यों नहीं ली गई? अब तक हमें कोई इत्तला ही नहीं थी, हमें इस बात की कोई इत्तला दी नहीं गई। आवाज ही नहीं आ रही, आप बोलते रहिए। हमें इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था और हमारे लाइसेंस रिन्यूअल होते रहे।
इधर 2 साल से हमारे लाइसेंस दुकानदारों के रिन्यूअल नहीं किए गए और अचानक बदसाला बंद कर दिया गया, ये कह के अवैध है, जबकि बदसाला नगर निगम का था। बदसाला से हमारे मुंशी नगर निगम के कर्मचारी पैसा लेते थे, फी जानवर 10 रुपया बदसाला शुल्क। उसके बावजूद भी अगर अवैध था तो हमको बताएं अवैध कैसे हो गया। वो क्योंकि वो नगर निगम ने बनाया, सैकड़ों साल पुराना है वो। हमारी सैकड़ों कम से कम हज़ारों दुकानें हैं, आज तक नगर निगम से कोई इत्तला नहीं है, अचानक बदसाला बन गया। अच्छा, Sudhanshu Trivedi, could this have been done in a phased fashion? Many people are saying that this is as sudden as demonetization. Those comparisons are being made. If people could be given a period to return their cash in the case of demonetization, these people are saying, why not give us similar concessions? Mr. Trivedi, can you hear me? It's not the question of giving any time or other thing. If you know, number one thing, our government has made it very clear that those who are having the legitimate and licensed shops and slaughterhouses, they will not be they will not be having any problem. But if you remember, there was an order of NGT, National Green Tribunal, in 2015, which was categorically saying that there should be a proper action taken against those who are having not proper license or not following the guidelines as required by the government and the NGT. Somehow, because of whatever the reason was, Akhilesh government has not implemented that order. So this order was to be implemented in 2015, but up till now they have not implemented, and still we maintained and strictly maintained on the stringent line that we are only touching those who are having not proper license and those who are not following the proper guideline as laid down by the various government authorities. So those who are doing proper business with the proper legitimate guidelines, they are having no problem at all. All right, तो कुरैशी साहब इसका जवाब दीजिए कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सरकार के ऊपर उंगली उठाना क्या सही है? 2 साल तक अगर पिछली सरकार ने आपको लाइसेंस नहीं दिए, ask for some excuse which will not be possible for any government, and at कोई least उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं इनका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अवैध बंद करा जाए, लेकिन अवैध जब हो तब बंद कराएं, या हमको बताएं क्या अवैध है क्या अवैध है। आपने अचानक स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया और उसके बाद जो है दुकानें बंद हो गई। पुलिस, अगर दुकानदार हमारा दुकान खोल रहा है तो पुलिस तंग कर रही। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इन गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, या तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई होती। कोई व्यवस्था किए बगैर, कोई इत्तला दिए बगैर स्लॉटर हाउस पर ताला डाल दिया, और उसके बाद हमारी सैकड़ों दुकानें, हजारों दुकानें जो हैं लखनऊ के अंदर, उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया कि वो दुकान नहीं लगा सकते। पुलिस वाले कहते हैं लाइसेंस बदसाला बंद है तो काट के कहाँ से लाए हो, इसको कहाँ से काटा है, क्यों काटा, दुकान बंद कर दो। अब इस हालत पे भूखमरी के कगार पे ये कौम पड़ गई है, ये समझ लीजिए बहुत ही परेशानी हालत में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो है अवैध बंद कर दिए जाए। बदसाला अवैध बिल्कुल बंद करिए, लेकिन जब अवैध नहीं है तो उनको बंद करना बगैर नोटिस के, बिना इत्तला के अचानक बंद कर देना, ये बहुत ही त्रिवेदी, क्या एक नोटिस नहीं दिया जा सकता था इनको, कम से कम 7 दिनों की मोहलत? क्योंकि पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने इनको दे केप्ट देम इन द डार्क, और अब इनका कहना है कि हमारे पास रिक्विजिट परमिशन थी, हमें जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो भी मिलता था, लाइसेंस भी मिलता था, उसके बावजूद अब अचानक सरकार कह रही है कि हम इलीगल है। देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि वो सिर्फ अवैध बूचड़खानों के ऊपर कार्रवाई करेगी, वैध पे नहीं। मेरी इनसे गुजारिश है, यदि इनके पास प्रॉपर लाइसेंस है अथवा इनके किसी जानकार लोगों के पास जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस और क्लियरेंस है, उनके साथ कोई कार्रवाई हो रही है तो यह सरकार में उचित स्तर के ऊपर अप्रोच करें। मैं आश्वस्त करता हूं कि वहां से इनको एप्रोप्रिएट रिलीफ, यानी कि जो वांछित सहायता है वह प्राप्त होगी। असलम जैदी साहब, आप पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन से हैं, आपका कहना है कि ये दो जो साइड है उनकी लड़ाई के बीच में आप भी पिस रहे हैं। आप तो पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन से हैं, आपने क्यों ये स्ट्राइक ज्वाइन की है? आपकी क्या तकलीफ है इसमें? क्योंकि सिर्फ जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। हम उससे सहमत हैं, जो इलीगल स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन ये मुर्गे जो हम किसान हैं, मुर्गा उत्पादक हैं,
करीब 5 करोड़ मुर्गा हम उत्तर प्रदेश में उत्पादन करते हैं महीने में। इन लड़ाई के बीच में हम फंस गए, मुर्गा उत्पादक फंस गया है। मुर्गे की दुकानें बंद कराई जा रही हैं मीट के आड़ में। या तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ नहीं पा रहा है कि हमें बंद क्या कराना है, गोश्त की दुकानों को बंद कराना है, बड़े के गोश्त की दुकानों को बंद कराना है। उनको लगता है कि ये सारा कुछ मीट है, मीट की दुकानों को बंद करा दो। तो हमारा ये कहना है, सुधांशु जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि उत्तर प्रदेश का जो पोल्ट्री किसान है, जो मुर्गा पालक है, जो 5 करोड़ मुर्गा पालता है उत्तर प्रदेश में, वो समस्याओं से जूझ रहा है। मुर्गे का रेट फार्म पे गिरता जा रहा है। मुर्गे की साइकिल कुल 35 दिन की है। और मिस्टर त्रिवेदी, इसीलिए ये एक फियर साइकोसिस है कि एक स्वीपिंग एक्शन लिया जा रहा है। हजारों लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड पर असर पड़ रहा है, और सिर्फ एक क्योंकि ये पोल प्रॉमिस थी, हर किसी भी तरह की मीट की दुकान को बंद किया जा रहा है, इसीलिए फियर साइकोसिस हो रहा है। क्या इनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता? नहीं, देखिए, हमारी सरकार की बिल्कुल कोई ऐसी नीति नहीं है कि सभी मीट की दुकानों को बंद किया जाए। जहां तक हमारी जानकारी है कि जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, यानी जो मुर्गे की दुकान वाले हैं, उनका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई होने का कोई आधार ही नहीं बनता है। फिर भी यदि उनको ऐसा कुछ लगता है, फिर भी किसान है, जब हमारा मुर्गा फार्म से उठ नहीं रहा है, दुकानदारों का ये कहना है कि हमारी दुकानें बंद कराई जा रही हैं, इसलिए हम आपका मुर्गा नहीं उठा रहे। हम तो बहुत परेशान हैं। 5 करोड़ मुर्गा अगर उत्तर प्रदेश में डंप कर गया और ये मरने लगा तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में मैं यही बात कह रहा हूं कि इसको लेकर किसी को अकारण भयग्रस्त होने की, यानी खामखा में खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुर्गे और उससे रिलेटेड चीज पर तो कोई रोक नहीं है, तो भाई अगर वो लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं मार्केट में, तो आप लोग उनको आश्वस्त करिए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकारी अकारण और अनावश्यक रूप से आपको परेशान नहीं करेगा। केवल और केवल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है। हमारे जो वहां के सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, आज भी सिद्धार्थनाथ सिंह जी का वहां पर स्टेटमेंट था बहुत क्लियर कि केवल इलीगल स्लॉटर हाउसेस के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यदि किसी भी कारण से वो ऐसा कर रहे हैं लोग, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है और उनको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वो आपका मुर्गा खरीदें और बेचें, उस पर किसी नहीं। सुधांशु जी, ये सिर्फ खौफ की बात नहीं है। इनका कहना है कि पुलिस वाले इनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। आपको लगता है कि इंप्लीमेंटेशन में कमी रही है? There has been what Siddharthnath Singh said in the afternoon, overzealousness. पुलिस वाले जा रहे हैं। मेरी इत्तलात ये है कि उत्तर प्रदेश के फार्मों पे पुलिस वाले जा रहे हैं, कह रहे हैं ये मुर्गा क्यों पाला है, इसको बेचने के बाद आइंदा ना पालना। ये एक पैनिक पैदा किया जा रहा है। ये आपके सरकार के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हमारी सरकार की बहुत साफ नीति। मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है तो आप उपयुक्त जगह पर अप्रोच करें, इस बात को पहुंचाएं, और आपकी जो ग्रीवियांसेस का रिडर्सल, यानी आपकी जो भी शिकायत है, उसका निराकरण बिल्कुल होगा। हाँ, मगर मेरा यह भी कहना है कि सब लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की अफवाह के भी प्रभाव में ना आए कि साहब मुर्गे की दुकानें बंद की जा रही, तो अचानक सब लोग अपने आप ही घबरा कर वो करना शुरू कर देंगे। तो वो लोग जो कि अफवाह फैलाना चाहते हैं और फैला के थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग भी कहीं इसमें जाने अनजाने में सफल ना होते हुए प्रतीत हो। इस बात को भी इंश्योर करना हम सबका कर्तव्य है। और कुरैशी साहब, ये बताइए कि अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो सरकार के पास जाने की जगह ये इनडेफिनिट स्ट्राइक करने का क्या मकसद था? क्योंकि इससे शॉर्टेज पैदा होगी, लोगों में और खौफ भी फैलेगा। किसी स्ट्राइक पे नहीं है, पोल्ट्री किसान किसी स्ट्राइक पे नहीं है। नहीं, मैं कुरैशी साहब से, मुख्यमंत्री जी को, मैं अब्दुल हामिद कुरैशी से ये बात कर रही हूँ। कुरैशी साहब, सरकार के पास आप गए क्या? मैं कोई सरकार के पास गए, वहाँ हमने अपने प्रार्थना पत्र दिया, और हमारी जब नगर निगम वालों ने अचानक ताला डाल दिया हमारे बसाले पे, वो उसके बाद जो है हम लोग जितने व्यापारी हैं, ये सोचा गया कि दुकान हमारी लाइसेंस है, लाइसेंस हमारे सैकड़ों साल पुराने लाइसेंस हैं, और हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी का सबका विकास चल रहा था, उसी हिसाब से तो हमको क्यों साथ लेके नहीं चला गया और हमारे दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया गया। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे बदसाला खुलवा दिया जाए, और बदसाला खुलवाने के बाद हमारे लाइसेंस करा दिए जाए, ताकि हमारी दुकानें, हमारे गरीब दुकानदार जो है अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। नहीं है कि अगर कोई वधशाला इलीगल तरीके से चल रही है तो आप स्ट्राइक करें और फिर उसको खुलवाने की, उस वधशाला को खुलवाने की मांग रखें।
नहीं तो वो बदसाला हम नगर निगम ने बना के दिया था, तो कैसे हो जाएगा? नगर निगम ने ही बनवाया, नगर निगम के कर्मचारी रहते हैं, वहाँ सफाई करते हैं, हमसे बदसाला शुल्क लेते हैं, नगर कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, तो अवैध कैसे हो गया सर? Mr. Trivedi, would you like to respond to this? So there's a whole litany of complaints, बहुत सारी complaints हैं, और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां एड हॉक तरीके से अगर नगर निगम की वधशाला है उसको बंद किया गया है, अगर आदमी के पास लाइसेंस है बंद कराई जा रही है, पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं जो पोल्ट्री बेचते हैं उनको भी बंद कराया जा रहा है। क्या ज्यादा कोताही बरती जानी चाहिए थी बिफोर दिस वाज इम्प्लीमेंटेड? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी बिजनेस होता है, उसका जब लाइसेंस दिया जाता है उसके बाद आपको पीरियोडिक लेवल पे, यानी बार बार निश्चित समय के बाद आपको उसकी गाइडलाइंस को फॉलो अप करने का काम चलता रहता है। कोई भी बिजनेस हो आप देख लीजिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार लाइसेंस दे दिया तो वो हमेशा चलता रहता है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो 2015 का ऑर्डर था उसको अखिलेश सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उस गाइडलाइंस के पैरामीटर में जो लोग नहीं आ रहे होंगे लीगली सिर्फ उन पे कार्रवाई हो रही है। तो अगर कोई ऐसा है जो कह रहे हैं कि साहब हम पिछले जमाने से चले आ रहे थे, अब अगर पिछली सरकार ने कोई एक गलत ऑर्डर था जिसको कि उन्होंने गलत तरीके से उस ऑर्डर को इग्नोर किया, यानी उसको नहीं इंप्लीमेंट किया, तो भाई इसमें तो हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। और फिर हम आपसे कह रहे हैं अगर सब कुछ लीगली सही है, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, आप उस बात को उपयुक्त जगह तक पहुंचाएं। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा साहब, मगर जो लोग इलीगल हैं जाने अनजाने में उनको किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान करने का प्रयास न किया जाए। जी, आपको लगता नहीं सरकार के साथ बैठ करके इस मसले को सुलझाया जा सकता है स्ट्राइक करने की जगह? कुरैशी साहब भाई, अगर हमारे सुलझाना क्या मसला हमारा जो है वो सिर्फ इतना है कि बदसाला नगर निगम का है, बदसाला शुल्क हमसे लिया जाता है, अचानक ताला बंद करती है, हर साल लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, हर साल हम लोग रिन्यूअल कराते हैं। अब उसमें अवैध हो क्या गया हमारी ये नहीं समझ में आया। बिना सूचना दिए हमारी दुकानें बंद करा दी गई, हमारे जितना व्यापारी है, मीट विक्रेता समझ लिए भुखमरी कगार पे आ गया, परेशान है, बच्चों के स्कूल की फीस देना, दुनिया की परेशानी बढ़ गई है, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा अगर नहीं वो करता है अनिश्चित। All right, so very curious situation where both the sides say that they are in the right. The government is saying that only those who do not have the requisite permissions are being acted against, and here there are traders who are saying for years we have been issued licenses by the Samajwadi Party government, by the municipality. The real question that these striking traders should ask should be to the Samajwadi Party about how this was allowed to happen despite specific guidelines by the National Green Tribunal. This is a story we'll keep our eyes on. For now, thank you very much, gentlemen, for joining us on 8 p.m. Completely out of time. Coming up next, India First with Gaurav.